So in this class, we will do the next doha of Rahim from your textbook वसंत भाग 2। वसंत भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक से हम लोग रहीम के दोहे चैप्टर से ये वाला दोहा आज पढ़ेंगे। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दोहा। इन दिस दोहा हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कुछ लोग जो शो ऑफ करते हैं, कैसे जो कुछ लोग ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, दे जस्ट बोस्ट देमसेल्फ, उनको वो कैसे कैसे वो आपस में बातें करते हैं, कैसे हमें शो ऑफ करते हैं, कैसे हमें उन्हें पहचान लेना चाहिए। सो थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात। थोथे मीन्स छिछला, उथला, और यू कैन से एम्प्टी। इट्स एम्प्टी और हॉलो, एम्प्टी और हॉलो। बादर, बादर means badal, which is the cloud. Okay. Kwar ke, Kwar is a month. Kwar is the name of month, which is Ashwin in Hindi, and in English calendar it's a September and October. In English calendar it's a September October, from 14th of September to 15th of October, or mid September to mid October. So in this season in the North India there are clouds, but they don't rain. You know, the Kwar is the month. Hindu calendar has the 12 month. Hindu calendar has the 12 month, which you can see like this, that Chaitra, Vaishakh, first month is Chaitra, second month is Vaishakh, third month is Jyesht, fourth month is Ashadh, fifth month is श्रावण, और जिसे हिंदी में हम लोग सावन भी कहते हैं। आया सावन झूम के, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में गाने बनते हैं ना सावन पे, खूब पढ़ते हैं। भाद्रपद, द सिक्स्थ मंथ इज भाद्रपद, और भादो भी कहते हैं जिसे। सेवेंथ मंथ इज द आश्विन, दिस इज द सेवेंथ मंथ आश्विन, विच इज द क्वार। क्वार ही जो है महीना होता है जिसका इन्होंने उल्लेख किया रहीमदास जी ने। ये कब पड़ता है क्वार का महीना? सितंबर अक्टूबर, मिड सितंबर से मिड अक्टूबर के बीच। एट्थ मंथ आपका हो गया कार्तिक, नाइन्थ मंथ हो गया आपका मार्गशीर्ष, फिर आता है आपका 10th मंथ पौष, या जिसे पूस भी कह देते हैं, बहुत ठंड पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, पूस। 11th मंथ आ गया आपका मघा, या जिसे माघ भी कहते हैं। ये स्टार्ट होता है आपका फ्रॉम वो खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति से स्टार्ट हो जाता है ये मंथ ये। फिर आता है आपका फाल्गुन। तो चैत्र इज द फर्स्ट मंथ of the Hindu calendar, which start from the March and April, and Falgun is the last month, which comes in the February and March, and this Magh is the month which starts from the Makar Sankranti. So these are the these are the name of the month according to the Hindu calendar, and your Ashwin Kwar is the 7th month, which lies in the September October. So in the North India,
during September and October month, there is not too much rain. The clouds come, but they don't rain. The rain is usually between the सावन मंथ, सावन में होती है, भादों में होती है, लेकिन क्वार में नहीं होती। ज्यों, तो वी विल जस्ट सेइंग दैट थोथे मीन्स empty or hollow. Badar means cloud. Quar is the name of the month, as I told. Jyo. Jyo means as. Rahim is his name. And Gharat. Okay. Gharat means आवाज होती है बादलों की. Thunder. Thunder of the cloud. गड़ 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 होता नहीं. Thunder of cloud. So in the month of the Quar, or in September, October in the North India, what happens? The cloud come and there is a lot of thunder in that cloud, but they don't rain. It is said that ना भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है, या जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है. ये एक स्लोगन है जो बोला जाता है. इन द सेम वे, अब नाउ ही इज कंपेयरिंग धनी पुरुष निर्धन भय. धनी इज द रिच पीपल. पुरुष मीन्स man or human. Nirdhan bhai. Nirdhan means poor. Bhai means became. करे पाछली बात. They do. करे means do. पाछली. पाछली means पीछे की बात. Past. पाछली मतलब पीछे की बात या पास्ट में जो बातें हुई हैं उसकी जो है वो लोग बातें करते हैं. बात means incidents. Past incidents और मैटर और टॉक वॉट एवर. सो कुछ लोग होते हैं ना जो बैंकरप्ट हो गए. सपोज इज रिच पर्सन एंड ही बिकम्स बैंकरप्ट, but still he is boasting of that, in the past I was so rich, I can sue you, I can do this, my links are that, my links are this, I can do this, I can do that. But in the present he is just a bankrupt and frustrated person who cannot do, but he is still going on and going on. अरे जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो उनके पास इतना बड़ा मकान था, ये था वो था, हम तो चाहें तो खरीद लें, बट अभी चाहते नहीं है. मतलब वो लोग तो फेंकते रहते, फेंकने वाले लोग कि बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बैंकरप्ट हैं, बर्बाद हो गए, लेकिन रस्सी जल गई पर बल नहीं गया. सो इन द सेम वे, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं. सो इन दिस दोहा रहीम हैज कंपेयर्ड द बैंकरप्ट पीपल, और जो पीपल बोस्ट करते हैं अपनी इमेज को, उनको उन्होंने क्वार के बादलों, आश्विन महीने के बादलों, सितंबर अक्टूबर मंथ के क्लाउड से कंपेयर किया है कि जैसे एज द क्लाउड्स ऑफ क्वार आर एम्प्टी एंड हॉलो, they have lot of thunder but they never rains. They never rain. They never give the water on the earth. Usually they never give the water on the earth. But the rich people, as in the same manner, the rich people who become poor or become bankrupt, they still boast of their past. There are few rich people who still boast their past. They talk about their past. बढ़ा चढ़ा के खूब बातें करेंगे कि I was that, I was this, like that. So these frustrated and bankrupt people are like the clouds of war. So here Rahim is saying that a bankrupt person is like the is equal to cloud of September October. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. सो अब यदि सपोज करो अभी आपके एग्जाम में आ गया, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि आपको ढेर सारे मार्क्स मिले. अब हमको एक नई चीज देखेंगे कि कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे कि हमको ढेर सारे मार्क्स मिल जाए, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए. पर्पस तो यही है ना बेटा कि हमने लिखा, अब वो मार्क्स भी आने चाहिए. आए लिखे, एग्जाम में दिए, टीचर को पसंद ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दोहा लिखा है उसको कॉपी पे ऐसे लिखेंगे. पहले एक संकेत के रूप में लिखेंगे, जैसे लिखा थोथे बादर, ऐसे लिखा. now write this, now write dot 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 and then write the last word, करे पाछली बात.
करे पाछली बात। इसको हम लोग संकेत भी कभी कभी कहते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू राइट देन राइट। संकेत मीन्स द इट इज अ आई एम पॉइंटिंग, आई एम जस्ट गिविंग हिंट। थोथे बादर लाइक दैट दिस। नाउ राइट द संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ इज द रेफरेंस। संदर्भ में आप लिखेंगे क्या? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत दोहा, द दोहा विच हैज बीन प्रेजेंटेड, हमारी पाठ्य पुस्तक, आवर टेक्स्ट बुक। और बेटर यू राइट मोर स्पेसिफिक, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, द टेक्स्ट बुक, द हिंदी टेक्स्ट बुक, the doha which has been presented has been taken from our Hindi textbook वसंत भाग दो के पाठ 11, चैप्टर 11, रहीम के दोहे। रहीम के दोहे से लिया गया है। Means this doha has been taken from our text Hindi textbook Vasant part 2 from chapter 11 and the name of the chapter is रहीम के दोहे। इसके रचयिता, रचयिता मीन्स क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ दिस इज कविवर। कवि, एक तो कवि होता है, कविवर हो गया ग्रेट पोएट। ग्रेट पोएट रहीम हैं या रहीम जी हैं। सो इन द रेफरेंस यू विल राइट प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 11 रहीम के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर रहीम जी हैं। now the second thing we will write the prasang, which is the context। you will write the context or the theme of this doha। in this you will write context or the theme of this doha। so in the sandarbh we will write just the introduction, that from where this doha has been taken, and in the prasang you will write the context, the theme। आप लिख सकते हो इस दोहे में कवि रहीम ने, इस दोहे में कवि रहीम ने दिखावेबाज या शो ऑफ, जो शो ऑफ करते हैं पीपल ना, दिखावेबाज लोगों की तुलना, दिखावेबाज मीन्स शो ऑफ करने वाले पीपल। दिखावेबाज लोगों की तुलना, कंपैरिजन, क्वार के बादलों से की है। क्वार के बादलों से की है। सो इन दिस दोहा poet Rahim has compared the show of people, the showing of people or the bankrupt people. The Kavir Rahim has compared the bankrupt people with the clouds of Quar की है। And now you will write the Vyakhya, the meaning of Vyakhya is the explanation। now you will write the Vyakhya, the meaning of Doha, what you have learned or the explain the Doha। and the last
you will write the tippani or remark. In this, you will write any specific or peculiar feature of these दोहा. अब इस दोहे की खास बात क्या है? क्या ये हिंदी है? नॉर्मल हिंदी तो है नहीं, ये कोई दूसरी भाषा है. तो ये कौन सी भाषा है? हिंदी की एक डायलेक्ट है. यह दोहा ब्रज भाषा में लिखा गया है. ठीक है, किसमें? ब्रज भाषा में. ब्रज भाषा कहाँ की भाषा है? मथुरा की भाषा है. ओके, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ब्रज गांव है, ब्रज है, वो वहाँ की भाषा है. ब्रज में कौन रहता था? कृष्ण भगवान रहते थे. लॉर्ड कृष्णा वॉज residing in the Braj Gaon. His father Nandlal was, his father Nandji was the head of that village. Braj भाषा में लिखा गया है, and the Braj language was of that village. So Rahim was living near the Delhi region, the Mathura, Delhi, the belt. Mathura is the district near the Delhi, and Braj village is near that region or in that region, and that this Braj language is prevailing on that time. So he wrote this doha in this language. Or you can say that इसमें स्टाइल कौन सी है, और ये क्या कह सकते हैं आप कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है. उपमा अलंकार, इन्होंने उपमा दी, कंपेयर किया है. उपमा अलंकार, यहाँ उपमा अलंकार है. उपमा अलंकार इज द सिमिली. When you compare one thing with another thing, then you use the simile. Upama alankar. Alankar is what? Figure of speech. Okay. Alankar is figure of speech. So if you write, so this is the format. Sanket, few words like this. ऐसे 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 आपने few words संकेत लिखा, फिर आपने संदर्भ लिखा, फिर आपने प्रसंग लिखा. First you write the hint, then you write the sandarbh, then you write the prasang, then you write the vyakhya, then you write the tippani or special feature or remark. If you write the doha or vyakhya in this manner, it is your style, then you will get the full marks. If it is a 5 mark, then 5 of 5 marks. So this was the doha. थोथे वादर क्वार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात. Thank you.